ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସରକାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ମାରି ଧରି ଆମକୁ ଏମିତି କରିକିରି ଏମିତି ହଇରାଣ କରିକିରି ଆମକୁ ଏଠୁ ତଡ଼ିବେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ନେବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବୁ ଆମକୁ କେତେ ଜାଗା ଦବ କେତେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। Along the eastern coastline of India, in the state of Odisha, lie the 4 villages of Dinkia, Patna, Govindpur, and Nuagaon. Till 2005, the people of these villages were known mostly for 2 things. First, for the betel leaf they cultivated, amongst the best in the country, and second, for protecting and preserving the forests and wetlands along the coastline of Odisha. In June 2005, the government of Odisha announced its decision to hand over the villagers' lands to POSCO, a South Korean steel company, for it to build a steel plant and a private port. This is land that the villagers have cultivated for generations, and within days, the people announced their decision to resist POSCO's project. आमे पोस्को ପାଇଁ आंदोलन करू काई आंदोलन करछु हमरे जो भिटामाटी रहिछि जो काजू रहिछि सजना रहिछि पान रहिछि नडिया रहिछि आउ सब प्रकार धान अछि सब प्रकार फैसिलिटी रहिछि तेणु सेइत पई सरकार आउ पोस्को कंपनी ये जगह पर लोभ करिछि जे ये जगह रे हमकु विस्थापित करी ये जगह नबो नेकी तार कारखाना करिवो। About 22,000 people live and work on the 4,000 acres of land that the government of Odisha wants to hand over to POSCO. This land also supports the livelihoods of another 25,000 people from approximately 30 neighboring Gram Panchayats. These are fishing communities that will lose access to the coast due to POSCO's private port, as well as farm laborers that depend on the agricultural economy of this area. While these numbers are big, they represent only a small fraction of the displacement that will be caused by POSCO's mining of the captive mines in the Khandadar region. Estimates of total displacement in the mining area run as high as 50,000 people. किंतु आमे हमर कहया कथा एमितिया शस्य श्यामला जगह ये जगह को आमे केबे हेले छाड़िबु नाही आमे मरिबु पछे आम रक्त बिंदु थिबा पर्यंत आमे लड़ाई करिवु एवं ए जगह को रखिबु। Since 2005, the residents of these villages have struggled against the takeover of their land through PPSS or the POSCO Pratirod Sangram Samiti. This is a peaceful resistance, although there have been some clashes with the company and with the armed might of the Odisha government. This film is a testimony to what 7 years of resistance does to a people, and a record, we hope, of the real costs of resistance. जो भली भाव दीर्घ 6 वर्ष धरी आम बापा माँ मानू सरकार अत्याचार दे आसुची तेणुक जो भली भाव गत किछि दिन पूर्वर पुलिस बालतुठे आम बापा माँ को रबर बुलेट आउ गैस लुहबुहा गैस प्रयोग करी आम बापा माँ को लाठी बाड़ई रक्ताक्त करिथिला सेई कथा भाबिला बेलू आम मन कौन हो जाउची तेणुक जो भली भाव नुआ गाँव रे बर्ज भांगिले जबरदस्ती आम गाँव को आसवा बेलू आम मैंने पिला माने बसी शपथ नेलु जे आम बापा माँ को सुरक्षा करने आम बापा माँ जुआड़ जी आम मैंने सियाड़ जीव तेणुक आम बापा माँ जोटी बसवे आम से बसबू तेणुक आम बापा माँ जो आंदोलन करने को जाते जो बटक पाखक आम से बसी आंदोलन कलु बापा माँ को आगे बसिलु कारण आमर जहाँ आमको मारी सारा पड़े आम बापा माँ को मारे तेणुक आम आगे बसिलु आम ततला बाली जो भाई भाव आम ततला बाली शोलु जो सरकार पुलिस प्रशासन मिसी आम बर्ज भांगा चेष्टा करथिले किंतु बर्ज भांगी पार नथिले। Such attacks by the police against unarmed protesters exemplify the state's abdication of its role as a protector of public interest and instead its advancement
of particular corporate interests. और कंपनी बनाने के लिए सरकार सब कुछ कर रहा है इधर, कोई भी आइन कानून नहीं मान रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं मान रहा है, एनवायरमेंट लॉ नहीं मान रहा है, सीआरजेड लॉ नहीं मान रहा है, सब कुछ ये गैर कानूनी करके ये सब कर रहा है। सरकार ऐसा किया कि डायरेक्ट आया पुलिस आके हमारा लोगों के ऊपर फायर किया, लाठीचार्ज किया, फिर भी लोग को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जमीन भी नहीं ले पाया। फिर अभी गुंडों को हमारा ऊपर लगा दिया, आके हमारा ऊपर अटैक कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ये जो सिचुएशन कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कर रहा है, ये सब सरकार जानबूझकर कर रहा है। Over 1,500 of the locals have arrest warrants against them, almost all on baseless charges and almost without exception arising from the confrontations when armed gangs of thugs or state armed forces attacked the villagers on behalf of POSCO. ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ ମୋ ନାଁରେ 15-20ଟା କେସ୍ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଦଫା ଅଛି 307 ରୁ 302 ଗୋଟା ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଦଫା ସରକାର ସରିଗଲାଣି। ଆମେ ସବୁ କେସ୍ ଖାଇସାରିଲୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଗାଁର ପ୍ରାୟ କେହି ବାକି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ ଆମ ନାଁରେ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ପୋଲିସ ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ପୋଲିସ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇଯିବ, ପରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, କାରଣ ଆମ ଉପରେ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ये पुलिस प्रशासन गुंडा एमानकु बटेइकरी आमको मारी आमको थानाକୁ ଯାଇ केस देई आम एफआईआर नहीं गला एफआईआर रखुना मत आरेस्ट कर रखिले 4 दिन थाना तापर भी आम देह मुंड कि जो बजार सौदा जापरनु खाया किसी परियापत्र पाइपरनु सब जिनस गला आम पुलिस आरेस्ट कर बालचुट बजार उपर घेरिकी परिवार मो पुओ को आरेस्ट कर मत आरेस्ट कर मो नाती कर मो परिवार मो बहु सह समस्त को आरेस्ट करेंगे आमको बाहर छाड़बे आम केमी चलू कौन उपाय करंतु ये राज्य सरकार कौन जानी होनी। The state's surrender to the demands of POSCO has resulted in a near complete collapse of the villagers' ability to lead a normal day-to-day life. The villages' resistance and their refusal to allow representatives of POSCO or government officials inside their villages is being used by the state to lay siege to these communities. Services such as education or healthcare, already hard to access, have become nearly impossible to obtain because of the conditions of siege imposed by the government and multiple attacks by pro-POSCO militias. आंदोलन करूँ हेले आंदोलन कला परे भी आमको बहुत कष्ट भोगिया पड़ुची एमती कि आम बाहर को जापरनु डाक्तर पाखु भी जापरनु देह मुंड जहाँ हेले बाहर को न जापर पिला को भी पाठ पढ़ाई पारनु जो पिला माने बाहर पाठ पढ़ुचनी से पाखु भी आम जापरनु जहाँफल कि पिला माने पाठ पढ़ी पारना आमती भी मु दिने भी मो पुओ को लेकिन डाक्तर पाखु जाइली ता देह खराब थिला किंतु पुलिस मते बाटरू अरेस्ट कर नहीं गला मु जानिनी मो नार केस अछि से माने मिथ्या केस ये करी मते अरेस्ट कर नहीं गले बाटरे पिला को बाटरे छाड़ दे गले। मैं पहले ये आंदोलन से पहले पान पत्ता को बाहर भेज रहा था। हमारा पान पत्ता भी बाहर ऑल ओवर इंडिया में पूरा फेमस है, बनारस पान का नाम पे पूरा फेमस है, रेट भी अच्छा है, एक पत्ता को 1 रुपया भी हम बेचते हैं। इससे मेरा जैसा पूरा 200-300 ट्रेडर भी है, ये भी निर्भर कर रहे हैं और बाहर का कुछ ट्रेडर भी है आके ये सब ऊपर निर्भर भी कर रहे हैं। और हम ये पान ट्रेडिंग करके ये रेलवे को हर दिन 30-40 हज़ार रुपया देता हूँ, लेकिन ये जो कंपनी होने का बाद जब MOU साइन किया आंदोलन शुरू हुआ, इसके बाद हमारा ऊपर सब केस वास लग गया, हम बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, कारोबार ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, हमारा जो ये पान पत्ता है, कासू है, मछली है, ये बाहर नहीं बेच पा रहा हूँ, इसलिए ये सब हमारा ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। बाहर को मोर जो काम सब पड़े बाहर को मेकानिक काम से भी जापारनी बहुत असुविधा होची, रोजगार पत्र बहुत कमी जाइए। जदि गणतंत्र प्रकृत गणतंत्र हिसाब करा जाए ताले गोटे घर मुरबी जदि चोरी कला तामाने से घर केबे रहिबनी। While the farmers' refusal to give up their land to POSCO speaks to their deep connection to the land, the refusal is also a result of the paltry compensation offered by POSCO. The average annual income
of a betel vine farmer is about rupees 40,000 per decimal of land, which means that over the projected 30-year lifespan of the POSCO steel plant, an average farmer stands to lose an income of about 1.2 million rupees. In comparison, POSCO has offered a one-time compensation of rupees 11,500. In other words, POSCO has offered less than 1% of a farmer's cumulative earning potential in return for giving up his land, his home, and his livelihood. ये सब पूरा 90% लोग ये पान खेती करके और काजू मछली पकड़ के धान खेती करके ये सब जीविका निर्वाह कर रहे हैं। ये सब चला जाएगा तो पूरा 40,000 लोग का ऊपर पूरा असर पड़ेगा। ये 40,000 लोग के बाद बाहर से भी 4-5 हजार लोग आते हैं काम करने के लिए इधर। दिल्ली वेजेस जो है यहाँ का पूरा 300-350 रुपया है। कोई सरकार भी 4th क्लास एम्प्लॉय को इतना भी दिल्ली वेजेस नहीं देते हैं। हम देखा कि कंपनी जितना सब कंपनसेशन दिया था, लोग 2 महीने में खर्चा कर दिया सब। करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपया कुछ लोगों को दिया था। अभी पान खेती टूटने के बाद ये लोगों का सब टोटल रुपया खत्म हो गया। अभी ये हमारा काम खेती में काम करने के लिए आ जाते हैं। ये जो आंदोलन हुआ इसीलिए हुआ, कंपनी होगा तो पूरा 40,000 लोग बेघर हो जाएंगे। माने ये 7 वर्ष आम लड़े करूँ माने गोटा गणतंत्र भी ये आम जानू जाऊ ना तेणु गणतंत्र ये लड़े चली भिटामाटी कि आम छाड़ी गणतंत्र ये संग्राम करूँ। तेणु जदि विचार करा जाए कलेक्टर को प्रथम कलेक्टर फाँसी पाया कथा, नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री 2 थर फाँसी पाया कथा। सबू तारी जनातर सब हो गोटे लोक को थरे फाँसी जाए किंतु जी अन्याय से 2 थर फाँसी देले भी आम लोक शांति हे। राजनीति कथा मुझे कहीपरि जान लो आम धान पान से चलो सी चंदा चलीज आम बर्द चलीगले बिलबारी चलीगले आम अचल हो दांडे भिकारी हो। How do we measure what has happened to the lives of the people of Dinkia, Patna, Govindpur and Nuagaon? Does not being able to move freely or to work not constitute violence? Does living for over 7 years in continuous fear of being attacked not constitute being subhuman? Does not being able to sell what you produce through back-breaking labor not mean a denial of livelihood? Does telling your child that she cannot go to school anymore not a loss of dignity